The book of Deuteronomy is called as the book of upper discourse. और व्यवस्था विवरण का किताब जो है इसको अपर डिस्कोर्स कहा जाता है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because Moses is coming to the fag end of his ministry. क्योंकि मूसा जो है अपनी सेवकाई के अंत के समयों में है। And all that he writes in this particular book acts as a discourse, comes to us as a learning, as a teaching from him. और जो भी इस किताब में वो लिखते हैं वो हमारे लिए एक शिक्षण के रूप में आता है। The people that he is addressing in this book और इस किताब में जिन लोगों से मूसा बात कर रहे हैं were not like the set of people he had to deal at the early stages of when they left the Egypt. तो ये लोग जो है वे लोग नहीं हैं जो शुरुआत में मूसा के साथ मिस्र छोड़ आए थे। But the ones who are a next generation who are ready to take over the land. लेकिन देखिए ये अगली पीढ़ी के लोग हैं जो देश पर हावी होने के लिए तैयार हैं। In fact, this particular book has lots and lots of laws. अगर देखा जाए तो व्यवस्था विवरण में बहुत सारे नियम हैं। But these laws are spoken, given with a certain mindset, लेकिन ये नियम जो है एक मनोस्था के साथ दी गई है, with a certain attitude. एक बर्ताव के साथ दी गई It है। is with edification that he has spoken to और us. मूसा ने हमको बनाने के लिए इन बातों को बोला हुआ है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी I बहनों, want us to open our Bibles to Deuteronomy chapter 1 verse 6 and 7. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 6 और 7वां वाक्य। Hallelujah. Hallelujah. It says in the NKJV version, the Lord our God spoke to us in Horeb, saying, you have dwelt long enough at this mountain. Verse 7, turn and take your journey and go to the mountains of Amorite, unto all the neighboring places in the plain, in the mountains and in the lowlands, in the south and on the seacoast, to the land of the Canaanites, unto the Lebanon, as far as a great river, the river Euphrates. हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए अब यहाँ से कुछ करो और अमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अरबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग अमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लेबनान पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। I want to give a brief background to this particular place. इस स्थान का बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूंगा। If you look at it very clearly, अगर आप यहाँ पे देखते हैं the first generation Israelites who were rebellious against God are dead and gone. Most of them are dead and gone. सो पहली पीढ़ी के जो लोग थे जो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में बलवा कर रहे थे वो सारे ज्यादातर अधिकतर जो है मर गए हैं। Very few of them are left now. चंद ही रह गए हैं। Praise God. And the new generation is ready to take over the land. और नई पीढ़ी जो है देश पर हावी होने के लिए तैयार है। But the problem with this new generation was, लेकिन ये नई पीढ़ी की ये समस्या थी, this new generation got used to be in the desert. ये नई पीढ़ी जो है वो आदी हो गई थी रेगिस्तान में रहने के Got लिए, used to the manna. मन्ना की आदी हो गई थी, Got used to the pillar of cloud in the morning. और जो अग्निस्तंभ है अग्निस्तंभ के आदी हो गई थी, Got used to the pillar of fire in the night. और रात को जो है वो अग्निस्तंभ आग का अग्निस्तंभ के आदी हो गई थी। So they were not ready to take a step forward. सो वे जो है कदम को आगे बढ़ाना नहीं चाह They रहे were थे, comfortably placed. बहुत ही अच्छे से वे थे They were living in great security. और बहुत ही सुरक्षित वो अपने महसूस कर रहे थे They अपने were आप not में। rebellious. वो बलवा नहीं कर रहे They थे, accepted God and every dealings of God. उन्होंने यहोवा को स्वीकारा और यहोवा जिस रीति से व्यवहार कर रहे थे उस सारे व्यवहार को उन्होंने But स्वीकारा। the only problem is, लेकिन उनकी ये समस्या थी they got too comfortable where they are supposed to be living in discomfort. कि जहाँ पे वो थे वहाँ पे बहुत ही आरामदायक रीति से वो रह रहे थे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning this particular thing may speak like our case. और इस सवेरे के वक्त ये हो सकता है कि हमारा संदर्भ भी ऐसा ही हो। 3 months back it all began with a day. और 3 महीने पहले जो है इसका शुरुआत एक दिन से हुआ था। Then they said 1 week. उसके बाद उन्होंने कहा 1 हफ्ता, Then they said that 3 weeks. फिर कहा 3 हफ्ते, And then it continued to further. फिर आगे जो है ये बढ़ता गया। It continued and now it is almost the third month. अभी तीसरा महीना चल रहा है।
Praise God. परमेश्वर के नाम And की it is स्तुति हो। quite possible, और ये हो सकता है just the way that these children of Israel were feeling comfortable, got comfortable in the desert, it is quite possible you and I am also getting comfortable wherever that we और are. जिस तरह से ये इजरायली बच्चे जो है रेगिस्तान में बहुत ही आराम से थे, उसी रीति से ये हो सकता है कि जहाँ कहीं भी हम हैं आराम से है। Just the way that they were secure and they were loving it, even we kind of getting to that secure place. और जिस रीति से वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे और उनको बहुत पसंद आ रहा था, इसी रीति से हमको भी ऐसा पसंद आ रहा है। I love the way that is mentioned here in verse 6. और छठे वाक्य में जो लिखा हुआ है मुझे बहुत पसंद है। The Lord our God spoke to us in Horeb, saying, "You have dwelt too long enough at this mountain." हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे यह कहा कि तुम लोगों ने इस पहाड़ पर काफी समय बिताया है You have dwelt too long. और काफी दिन तुम यहाँ पे बने रहे हो। My brothers and my sisters, no achievers sit in a particular place for too long. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर किसी को कुछ हासिल करना है तो वो ज्यादा समय तक एक जगह पर नहीं बैठा रहेगा। Anybody who wants to advance and achieve things will never sit in a place for too long. और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आगे चलकर जो है कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, वो एक ही जगह पर जो है काफी समय तक नहीं बैठा रहेगा। Growth does not allow us to be in a particular status quo just away for too long. और देखिए अगर हमको बढ़ना है, बढ़ोतरी की जरूरत है, तो हम जो है जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे काफी समय तक नहीं बने रह सकते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, God is pushing you and me. परमेश्वर आपको और मुझको ढकेल रहे हैं। Day after tomorrow, एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद that is from the Monday onwards. सोमवार से You and I are going to go out. हम और आप बाहर जाएंगे The quarantine period is going to come to an end. और ये क्वारंटीन का समय समाप्त होगा। You are to return to your place of work, आपको जो है अपने काम करने की जगह में to the जाना होगा, place of business. व्यवसाय में जाना होगा, You are to resume wherever that you were before. और जहाँ पहले जो है काम काज कर रहे थे वहाँ पे आपको वापस जाना It's होगा। quite possible that you are becoming too comfortable where you ये are. हो सकता है कि आप जो है बहुत आराम आपको लग रहा है जहाँ कहीं भी आप It हैं। is time for us to shrug ourselves and pick ourselves and look forward. और समय है कि हम अपने आप को हिलाएं, अपने आप को उठाएं और आगे की तरफ देखें और आगे की तरफ जाएं। For that to happen, there is a new attitude that you and I need. अगर ऐसा होना है तो हमको एक नई मनोस्था की जरूरत है। 3 points to gain that attitude. और 3 पॉइंट्स आपको देंगे ये मनोस्था को अपने में पाने के लिए। Number 1, और पहली बात, too long is not too good. और देखिए काफी समय अगर बने रहते हैं तो अच्छा नहीं है। Praise God. परमेश्वर के नाम की Hallelujah. हालेलुया। Too long being in one particular place is not good. और काफी समय तक अगर एक स्थान में बने रहते हैं तो अच्छा नहीं है। I want you to speak to yourself. आप अपने आप से बात करिएगा, Even as I'm speaking to myself. जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। No, it is not good to be seated in one particular place for too long. नहीं, अच्छा नहीं है कि एक ही जगह में काफी समय तक हम बैठे रहें, It बने is रहें। time for us to break और ground. जरूरी है कि हम आगे जाकर यश को प्राप्त करें। It is time for us to move forward. जरूरी है कि हम आगे की तरफ It बढ़ें। is time for us to take over the और land. जरूरी है कि हम जो है देश को ले ले। Promised land was in front of them there. और उनके लिए वादे का स्थान उनके सामने था। Now today you too have a promised land. और आज हमारे सामने भी वादा का The जगह है। promised land is your destiny. वो आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है। You are required to move towards the destiny. जरूरी है कि हम और आप उसकी तरफ बढ़े। Number 2, दूसरी बात, it's time to take turn towards your destiny. और समय है कि आप जो है अपने ध्येय, अपने लक्ष्य की तरफ मुड़ जाए। I'm sure enough in these 3 months that you have drawn yourself very close to God. और मैं निश्चय ही जानता हूँ कि ये 3 महीनों में आप परमेश्वर के और ज्यादा निकट आए हैं। The way that you began is not the way that you are today. और जिस रीति से आपने शुरू किया उस रीति से आज आप नहीं हैं। You are in the best and you are in your revived self. आप जो है जागरूक है। And I want you to understand one thing. और आप इस बात को समझ लीजिएगा Look for the turn. और उस मोड़ के लिए देखिएगा, Take a turn उस मोड़ को ले लीजिएगा and move towards the destiny. और वो ध्येय, वो लक्ष्य की तरफ आप आगे All the बढ़िएगा। decisions that you've taken while
quarantined. और क्वारंटीन के समय जो भी आपने निर्णयों को लिया है, The time has come for those decisions to manifest now. और समय आया है कि आप उन जो आपने निर्णय को लिया है उन निर्णय को अमल करें। May the Lord help you in the name of Jesus परमेश्वर Christ. आपकी मदद करे यीशु मसीह के नाम Number से। 3, तीसरी बात, very important. महत्वपूर्ण बात, Turn and move and mow over your enemies. और देखिए आप जो है मुड़कर आगे बढ़े और अपने शत्रुओं को जो है आप कुचल कर आगे बढ़े। Hallelujah. Hallelujah. You know, look, if you look at the first part of verse 7, अगर आप 7वें अध्याय 7वें वाक्य के पहले भाग को देखते it हैं, says, turn and take your journey and go to the mountains of Amorites. और लिखा हुआ है कि तुम यहाँ से कुछ करो और अमरियों के पहाड़ी देश को जाओ। You know what's the meaning of Amorites? अमोरी का क्या मतलब है? Amorites means to be bitter. अमोरी का मतलब है कड़वा होना, कटु होना। Amorite means to be rebellious. का मतलब है बलवा करना। The one who's bitter against you, जो आपके विरुद्ध में जो है कटु है, कड़ू है। the one who's rebellious against the plans of God for your life, जो परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है उसके विरुद्ध में जो बलवा करता है। your enemy and my enemy, आपका शत्रु मेरा शत्रु। we are called to move towards him, जरूरी है कि हमको जो है आगे की तरफ बढ़ना है to mow over him. और आगे की तरफ बढ़ना है और उसको जो है कुचल कर आगे बढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। With that kind of a mindset, और ऐसी मनोस्था को रखते with हुए that aggression, और ऐसी प्रकार की with, एग्रेशन को रखते हुए, with that kind of a understanding, ऐसे प्रकार की जुनून को रखते हुए, ऐसे प्रकार की समझ को रखते हुए when you go out, जब हम बाहर जाते the हैं, enemy cannot face you. ये शत्रु जो है वो कुछ नहीं कर You पाएगा। will crush his head, आप निश्चय ही उसको कुचल दोगे। and you will prove yourself triumphant in Christ Jesus. आप उसको मसल दोगे और आप जो है यीशु मसीह में जयवंत बने रहोगे। With this particular thought, और इस विचार के साथ prepare yourself this weekend और इस वीकेंड में अपने आप को तैयार कीजिएगा to the coming month, June. और महीने जून के महीने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. COVID will not stop you. कोविड आपको मुझको रोक नहीं सकेगा। Locusts will not stop you. टिड्डियां हमको रोकेगी नहीं। The cyclones will not stop you. और तूफान जो है हमको नहीं रुकेगी। Earthquakes will not stop भूकंप you. हमको नहीं रुकेगी। Because you are in Christ, क्योंकि हम और आप यीशु में हैं you're strengthened in Him. और उनमें हम बलशील हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Have a रखे। marvelous day. आपका दिन बड़ा आशीषमय जाए। An amazing weekend अद्भुत वीकेंड in आपका the हो presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।